Anybody else? Anybody else? और किसी ने होमवर्क किया? बेटा मैं आपको वर्ड्स दिए थे. Another word was reassurance. अच्छा किसी ने reassurance या assurance का बनाया? मैम मैंने बनाया है. अनुष्का, आई एम सो इम्प्रेस्ड बाय यू. बट बेटा आप सबने करना है ना ये होमवर्क. तो अनुष्का के शेयर द सेंटेंस. Yes, ma'am. The teacher reassured the nervous student before the big test. Yes, before the main exam you can write. Big test nahi beta. Big nahi. It should be main exam, or it can be terminal exam, or it can be board exam. Anything you can write. Big nahi, big and small nahi aayega. ठीक है बेटा? बिल्कुल सही बनाया. और I want समृद्धि, हर्षिता is there. प्रीति, आप लोगों ने नहीं बनाया, so take it as a homework. Please आप बनाइए. You get sentence making in your exam? Do you get sentence making? आप लोगों को? Yes, ma'am. तो फिर क्यों नहीं बनाया बेटा? इसीलिए मैंने ये किया था ना. Okay, anyways, now coming back to the lesson. एक सेकेंड. Okay, एक मिनट. आप लोगों के पास अपनी बुक है? Let's resume the reading part. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right. So we were on page number. एक minute. This is page number 44. 44. Yeah. Yeah. So read this. मैम मैं पढ़ रही थी कल. Is Harshida there today? Is Harshida there? Yes, ma'am. Okay, you read it, beta. Yes, ma'am. मैम हर्षद की बात नहीं. Okay. But let Harshida read it first. One day, higher earning in the Henry Irving. Henry Irving. in the midst of telling McQueen. Acha, we've done this. I think we read this part. No? So I think we should start from here. I can lie. Okay, this I had already explained. If you remember, twice he lied about not knowing the story, and third time he said that it was this story. Not only I heard it, but I invented it. यही मैंने बताया था आपको कल. उसने क्या बोला था कि मैंने सिर्फ सुनी ही नहीं है, मैंने ये इन्वेंट भी की है. Right? So I'm sorry, Harshita, you can start from here. Now, this entire page, whatever is within the box, it tells us that Mark Twain wanted to make English language more logical, okay, and easy for everybody. What does it mean, logical and easy? There are certain words which have a different pronunciation. Okay, जैसे हम वर्ड जो है केस बोलते हैं, CASE, कोई केस होता है ना. तो केस में when we pronounce case, sound is K. K का साउंड आता है कि नहीं आता है? अगर किसी को स्पेलिंग नहीं पता केस की, तो वो इंसान सोचेगा कि स्पेलिंग इज KASE, whereas the spelling is CASE. आपको समझ आई बात मैं क्या कह रही हूँ? The spelling is CASE and not KASE, but the sound is of K. So he wanted कि C की जगह should be replaced by K. I hope आप समझे बेटा. नहीं समझे हो तो मुझसे पूछो अभी के अभी. Yes, ma'am. समझा. ना? So okay. So जैसे for instance we say which, WHICH कहते ना, which is the book, which is the dress, है ना? तो which को when we say which, we don't, it seems as if the spelling is WITCH, which.
whereas the spelling is WHI. ठीक, which की स्पेलिंग, while नहीं, while की स्पेलिंग तो ठीक है, और किस चीज की स्पेलिंग हो सकती है that he said in this? थोड़ा सा सोचो, और कौन सी स्पेलिंग है where for instance we say night, KNIGHT, मैं रात की बात नहीं कर रही हूँ, KNIGHT, नाइट की बात कर रही हूँ. साउंड इज ऑफ न, नाइट, इट इज नॉट ऑफ क. जबकि हम स्टार्ट किससे करते हैं नाइट की स्पेलिंग? KNIGHT. आप सोच सकते हो कोई ऐसा वर्ड? कैन यू थिंक ऑफ एनी सच वर्ड? बट वी मेक के साइलेंट, हम उसको साइलेंट कर देते हैं. बताओ, इट्स अ वेरी कॉमन वर्ड. आई मीन आप हमेशा बोलते हो इस वर्ड. है बेटा? साइकोलॉजी. साइकोलॉजी, यस. और क्या हो सकता है? साइकोलॉजी में ऐसा लगता है एस से स्टार्ट हो रहा है, whereas it starts with P, isn't it? यस मैम. कुछ हम लोग इंग्लिश में इट्स नॉट लॉजिकल, समझ में नहीं आता कि हम लोग इवन साउंड समटाइम दे आर वेरी डिफरेंट, स्पेलिंग्स आर लिटिल बिट डिफरेंट बट साउंड. हाँ बोलो. आपकी आवाज क्लियर नहीं है. मोहिनी के नाम से जो भी बच्चा है, आपकी कल भी आवाज क्लियर नहीं थी बेटा. ओके, कोई और बच्चा बता सकता है मुझे? समृद्धि, यू पुट अप द हैंड, बताओ. मैम कप. मैं स्पीक. Cup, okay, very good. When we say cup, so spelling starts with CUP. C, it starts with C and not K, but the sound is of K. Very good. So what he wanted now, please. speak. हाँ बेटा. Speak. So speak. Speak की spelling में कहाँ पे K आता है लास्ट में? K sound है, it's fine. I don't think speak has that problem. Think of some other word. There are so many words. We have already said a few. Now, try to understand this. Mark Twain wanted to improve English language. Do you really think he wanted to improve English language? Speak में समझ गई प्रीति, but speak में speak. ठीक है. ठीक है. अब आप मुझे बताओ, he actually wanted to change the language, or he was just making a joke of it? He was a humorist, so he was cracking a joke by talking about all this. So please remember, Mark Twain, he cannot change the English language. Okay, he cannot change the spellings. That is not possible. But although he believed in traditional spellings, but what he wanted and what he wanted to say is that every word, every sentence has a meaning and an effect. हर sentence का, हर शब्द का बेटा एक अर्थ होता है, मीनिंग होता है, और उसका एक इफेक्ट होता है. तो he always wanted people to choose their words judiciously. जुडिशियसली का क्या मतलब हुआ? बहुत समझदारी से अपने शब्दों का चुनाव करो. समझ रहे हो? This is what he wanted. क्योंकि language has an effect, everlasting effect. आप अपने शब्दों को ढंग से चुनो. Now when he said in the first year, just read this. हर्षिता, आपका मैंने नाम लिया था. You can read this. Unmute करो हर्षिता and read it. Harshita, can you hear me? Okay, प्रीति करो, आप read करो. उसको सुनाई नहीं दिया शायद मेरी बात. प्रीति, you can read this. Mark Twain once. पढ़ो बेटा. मैम मैं पढ़ो समृद्धि. अच्छा, आप पढ़ो समृद्धि.
Mark Twain once proposed a plan for the improvement of English English spelling. For language spelling. example, in year one, that Mhm. useless letter C would be dropped to be Replaced, replaced either replaced. हाँ. by K or yes, and likewise a should no longer longer be part of the Of the alphabet. alphabet. The So he thought, I'll just explain it here. First of all, check, see, look at the word replaced. What is the actual spelling of the word replaced? रिप्लेस्ड की स्पेलिंग क्या होती है? प्रीति आप म्यूट हो जाओ बेटा, आपकी तरफ से बहुत डिस्टर्बेंस आ रही है. हाँ, थैंक यू. रिप्लेस्ड का बच्चा मेरा बताओ क्या स्पेलिंग है? Tell me what is the spelling. Just look at this and see what change has been made here. क्या change है यहाँ पर? And why is it so? मैम बताओ. हाँ हाँ जगह बताओ. यस, सी की जगह यस और डी नहीं होना चाहिए. मुझे आपकी बात क्लियर नहीं आ रही है. साइन प्लीज अपना, आपका इंटरनेट कुछ प्रॉब्लम दे रहा है शायद. सी की जगह यस. ए की जगह सी की जगह एस. यहाँ पे इफ यू, व्हाट इज द एक्चुअल स्पेलिंग? REPLACED रिप्लेस्ड. यहाँ पे उसने क्या लगा दिया? स, बिकॉज ऑफ द साउंड स. समझ रहे हो? So he is already, the word has, the letter has been changed here. Okay. And what he wanted, he said this X letter X, when we say A, B, C, D, X, Y, Z, he says X is a useless word. We don't need it. Drop it. And he said that wherever, when we use a word that starts with C, जिसकी स्पेलिंग C से स्टार्ट होती है, उसका साउंड जब K है तो K लगाओ. समझ रहे हो? और जहां पे सी है और उसका साउंड स से आ रहा है तो एस लगाओ. आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा बच्चे. yes, ma'am. ठीक है. ओके हर्षिता, read these two lines. हर्षिता, read these. Yes, ma'am. हर्षदा के बाद में Ma'am, एक सेकेंड हर्षिता को रीड कंप्लीट करने दो. द ओनली से लेके द वन विच आई हैव हाइलाइटेड. रीड करो बेटा जल्दी से. yes, ma'am. The only case in which C would be Retained relate would be the siege formation which will be which will be dealt with later. later. Now he said, where can we use the letter C? He said, when we have a spelling that starts with CH. Chain. CHAIN. Chain होता है. ठीक है. और उसमें साउंड च का आता है, च. So he said, then you can use CH. But if you are saying a spelling which starts with C, only C, then, and it is giving a sound of K, then instead of C, it should be written K. Why is he making all these changes? Because he wanted language to be simplified for people to be used easily. कि लोग confused ना हो. Right? या yes, ma'am. ओके. अब ये इतना सारा मैं आपको रीड करने के लिए, जो भी करेगा रीड करो. सॉरी, बताओ. मैम में दैट वाज इन ईयर 1. अब ये वर्ड देखो ना, हम लोग क्या बोलते हैं? मोस्टली वी से ईयर. इट्स नॉट ईयर, इट्स सेट ईयर. हम लोग ईयर बोलते हैं तो ये हमारे कान होते हैं. EAR, ईयर जो होता है ना, हमारे कान होते हैं ना, कान जिससे हम सुनते हैं.
राइट? तो जब हम साल की बात करते हैं, ईयर की बात करते हैं, सो इट इज रॉन्ग टू से ईयर, इट इज ईयर, ईयर, ईयर. ओके, हाँ समृद्धि आप रीड करो ये. मैम समृद्धि ने किया, मैं करूँ? हर्षिता ने पढ़ा था ना, समृद्धि ने. Reform ओके the आप पढ़ो. spelling so that which and one will take the same consonant. सेम कॉन्सोनेंट. अब आप ये देखो, you could not identify this word Samriddhi because the word consonant starts with C and not K. हम जब कॉन्सोनेंट बोलते हैं ना, Yes, आपको ma'am. पता है ना कॉन्सोनेंट क्या है? आर्टिकल्स एंड कॉन्सोनेंट, हमें सॉरी वॉवल्स एंड कॉन्सोनेंट बोलते हैं. तो वॉवल्स तो ए ई आई ओ यू हो गया, बाकी जितने भी होते हैं हमारे अल्फाबेट्स हम उनको कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं. तो जब हम कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं तो साउंड इज नॉट सी, द साउंड इज के, क. So he has already made the change here. Instead of C, they have written K. मैं इसकी बात कर रही हूँ. Let me highlight this. I am talking about this letter K. आप सबको पता है कॉन्सोनेंट की स्पेलिंग C से होती है, Yes, ma'am. है ना? और मैंने उसको रिप्लेस करके K कर दिया. Now here too, what did he say? He said W spelling so that which might reform W spelling so that which and one would take the same consonant. Which, if you say which, what spelling comes to your mind? Which में आपको H का वो आता है, WH का साउंड आता है कि नहीं? नहीं आता ना. और जब हम वन बोलते हैं, 1 2, हम जब वन बोलते हैं तो हमारे W का साउंड आता है इंस्टेड ऑफ O, मैम कम है ना? तो उसने ये बोला कि इन वर्ड्स को भी रिफॉर्म करो. एंड दिस वाज इन ईयर 2, ही सेड. समझ में आया? अब ये वाला रीड करो. एक एक आप अगर लिखना चाहते हो सो यू कैन राइट इट आल्सो. हाँ रीड करो. ईयर 3. it will abolish y replacing it with I and year 4 might fix the G and J anomaly once once and अब for यहाँ पे, all. yes, what is the spelling of once? एक बार. What is the spelling of once? ON. ONC. अब इसने यहाँ पे क्या चेंज किया बेटा? Just see, look at this word. He has changed once में हम तो O लिखते हैं, अभी आपने बोला ना, बट उसने O को कहां से रिप्लेस कर दिया? W से. W से कर दिया. He has changed it with the word W instead of O. I mean, Yes, it's not ma'am. that you have to, it's not that you have to remember all this, but आपको थोड़ा बहुत तो आंसर्स के लिए याद करना पड़ेगा ना बेटा. एंड देन यहाँ पे वंस में स साउंड आ रहा है. हमने क्या बोला था? अभी आपने मेरे को बड़ी करेक्ट स्पेलिंग बोली थी, ONCE. और इसने, अरे यार मैं इसको कर रही हूँ, एक सेकेंड बच्चा. आई थिंक वो O भी सिलेक्ट हो रहा है गलती से. अब ये N भी सिलेक्ट हो रहा है. N को इग्नोर करना. जो S है, मैंने ग्रीन से हाईलाइट किया, S है, वहां पे C आता है, बट स साउंड की वजह से he has written S. So look at the changes. Replacing में C has been replaced by S. Once में he has added W because there is a W sound, and C has been replaced by S because of the S sound. ठीक है? And another change that he made, he said when we say year, so it sounds like ear, है ना?
So instead of y he has added, क्या उसने ऐड कर दिया, कौन सा लेटर ऐड कर दिया in this? I. He has added I because of the sound here, but ये actually में wrong है. Actual pronunciation है here. It's year. It's never ear. But उन्होंने यहाँ पे it sounds like ear, तो उन्होंने उसको यहाँ पे y हटा के इन्होंने I लगा दिया. So what he is saying कि अगर कोई word is not giving, some letter is not giving that particular sound, so either it should be erased or it should be replaced. ठीक है. अब अगर मैं he has not said talked about night, हम लोग बोलते हैं ना, एक तो सोल्जर जो होता है पहले उनको नाइट नहीं बोलते थे, नाइट सोल्जर्स, KNIGHT, सुना ये वर्ड? वो नाइट्स एंड नोबल्स करते थे ना, बोलते थे हम पहले जमाने के नाइट्स एंड नोबल्स. नाइट्स वो होते थे, दे वर द सोल्जर्स, दे यूज्ड टू फाइट. ठीक है. एंड उनकी स्पेलिंग के से स्टार्ट होती है, बट द साउंड इज नाइट. जैसे वो रात होती है ना, NIGHT, रात, हम रात को कहते हैं ना, अंधेरे को, रात के टाइम नाइट. Yes, ma'am. है ना. लेकिन जो ये सोल्जर है उसमें हम के लगा देते हैं, doesn't give any sound of K at all. So he says then K should be removed and only जो sound है वही आना चाहिए. So he, मतलब according to him is simplifying. अब ये देखो word generally, what has he changed? Please tell me. In this letter, word, what change has he made? मैम जे, उसकी जगह जी की जगह, जी की जगह जे लगा दिया. Because when we say generally, j, तो वो जे साउंड आता है, doesn't give you जी साउंड. जनरली नहीं बोलते हम जनरली बोलते हैं ना. So he has replaced the G letter with J. Right? अब इसको अनुष्का आप रीड करो इतना. मैम मैं पढ़ूंगी थी. प्रीति इसके बाद पढ़ लेना बच्चा, आपको मैंने आवाज दी थी, अब आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, अब इसके बाद पढ़ लेना आप. ठीक है. अनुष्का आप पढ़ रहे हो बच्चा? yes ma'am. Read it. Generally, then the improvement would continue year by year with Not ire, it's ear only. He has said ear. उसके y को he is replaced with I. So आप वैसे ही बोलो जैसे आप बोलते हो. Ear yes, by year with year 5 doing away with unless double consonants and years 6 to 12 or so modifying vowel and the remaining voice and unvoiced consonant by year 15 or so, it would finally be possible to make use of the or the use over the redundant letters letters C, Y, Y and X and X by By- now. just a memory in the mind or हाँ. would would. अब आप just look at this. Nobody is going to ask you in exam to write this. ठीक है ना? It is not for you. The only thing they are showing you is that he has replaced. If you replace the words, the letters according to the sound, the entire language changes and its effect also changes. इफेक्ट भी चेंज हुआ. उसने सारी चेंज कर दी. उसने मॉडिफाइंग में, सिंस देयर इज नो वाई साउंड, तो उसको आई कर दिया मॉडिफाइंग.
हियर में वाई साउंड इज नॉट दियर तो उसको आई कर दिया. कॉन्सोनेंट में देर इज के साउंड तो ही हैज मेड इट के इंस्टेड ऑफ सी. वॉवल्स में व्हेन वी से वॉवल्स तो LES, वो उसने क्या कर दिया यहाँ पे Z, ज साउंड आ रहा है वॉवल्स, तो ही हैज रिप्लेस्ड इट विद Z. है ना, है ना. उसने वॉवल्स में ल ज एल कर दिया. ओके, देन कॉन्सोनेंट का हमने बता दिया, ईयर का हमने बता दिया. अवे, डूइंग अवे विद, अवे में देयर इज नो वाई साउंड, अवे इज आई साउंड, सो ही हैज मेड इट AWAI. But Anushka and Preeti and others, don't you think it is difficult to read, I mean, a sentence which has got so many changes like this? Yes, ma'am. है ना? Because our mind is tuned to what kind of English? The one which we have been reading till date. हम लोगों की जो माइंड है ना, वो एक्सेप्ट ये वाली इंग्लिश नहीं करता. हमारा Yes. जो हमें हमें वही ठीक लगता है जहां साउंड अलग है, स्पेलिंग अलग है, क्योंकि हमने बचपन से वही सीखा. समझ रहे हो? When we read this, it seems as if we are reading some different language and it has a different effect altogether. So it is only to tell. अब इसको पढ़ना बेकार है, but it's like आप अपने आप से पढ़ लेना इसको. The only you don't have to learn it. आपको don't have to remember it also. सिर्फ 2-3 words याद रखना, like here, the word replacing, one, once, ये वाले वर्ड्स, मॉडिफाइंग, अवे, ये 2-4 वर्ड्स आप अपने रजिस्टर में लिख लेना. एक्चुअल स्पेलिंग जो होती है एंड द स्पेलिंग विच ही वांटेड, विच ही अप्रूव्ड ऑफ. समझ गए? कुछ एग्जांपल्स याद कर लेना फॉर द एग्जाम, नॉट द एंटायर passage. There is no need, so that you can cite example while saying this, that he believed that every word and sentence has an effect. ठीक है? And we should say a word according, the spelling should be therefore according to the sound and not the standard one. He was going accepting, or he was liking the traditional spellings. पहले, बहुत पहले इस तरह के वर्ड्स होते थे जो कंटेम्प्रेरी लैंग्वेज होती थी तब ना, तब उस टाइम पर इस तरह की स्पेलिंग्स होते थे. समझ रहे हो? जैसे हमने, आई डोंट नो, आप लोगों ने शेक्सपियर का, विलियम शेक्सपियर पता है आपको? प्ले राइटर जो है विलियम शेक्सपियर, पता है आपको बच्चे? नहीं? तो विलियम शेक्सपियर के टाइम पे जो लैंग्वेज थी ना, उसमें दाऊ एंड दी बोलते थे, यू को दाऊ बोलते थे. तो दैट वाज उस टाइम की लैंग्वेज थी वो, टिपिकल. उसको पढ़ने में, जो ओरिजिनल, आप जब शेक्सपियर के प्लेस पढ़ते हो तो मुश्किल होती है पढ़ने में, क्योंकि उस टाइम की जो लैंग्वेज थी, दे फॉलो दैट. आप समझ रहे हो बच्चे? क्योंकि हमारा जो माइंड है वो इस तरह के वर्ड्स को एक्सेप्ट नहीं करता. So he was a humorist, this man Mark Twain, and he is simply, but उसने मजाक में ही, हंसी में ही, he has conveyed this message that we should always choose our words very sensibly, because every word has an effect. समझ गए? Because I told you that he was सिर्फ comedian ही नहीं था, he was a defender, he was a social activist. ठीक है? And now Preeti, you wanted to read this beta? आप पढ़ लो ये. Okay, ma'am. पढ़ो. One day during his tour, as the tenure is the period, time period. Okay? टेन्योर होता है ना, 5 साल, 4 साल, 3 साल, 2 साल, राइट? वो है. as the editor एडिटर of a small Missouri मिसूरी न्यूज़पेपर. हाँ,
make a screen request received मिलना receive a letter from a reader Hmm. who had found a sleeper spider मकड़ी spider हाँ spider in his his paper paper. He won, wondered wonder whether his this posted good or bad luck. Feeding feeling a finding a fe- spider in your paper finding a spider in your newspaper. Queen twain Queen हाँ replied replied is nothing, neither good good luck luck or nor bad bad. Bad. The was spider was merely merely looking looking over our our paper. over our paper to see which Merchant was merchant was not advertising. advertising, so that हाँ, he cloud go to that story speak store story नहीं store बेटा story होता तो वाई होता ना store stone spin his web was explores the door the door and lead laid, a life laid alive on of understand undisturbed peace please every well after. after Now this passage आप यहाँ पे कहीं भी लिख लो shows that Mark Twain was not a superstitious person. You know what is superstition? जब आप चीजों को एक मिनट हिंदी में क्या बोलते हैं सुपरस्टिशन को व्हाट इज इट कॉल्ड लेट मी चेक एक मिनट जब आप अंधविश्वास सुपरस्टिशन मींस अंधविश्वास ठीक है हम लोग सोचते ना कि ये है तो हम उसको इंटरप्रेट ऐसे करते हैं कि अच्छा ये हुआ तो उसका मतलब ये है करते हैं कि नहीं करते हैं yes ma'am करते हम लोग अंधविश्वास भी करते हैं हम गलत तरीके से उसको वो करते हैं सो ही वॉज नॉट सुपरस्टिशियस प्लीज आप लिख लो ये बात So one day during his tenure as the editor of a small Missouri newspaper, Mark Twain received a letter from a reader who had found a spider in his paper. And he wondered whether this portended good or bad luck. यहाँ portended का क्या मतलब हुआ कि ये मतलब क्या इंडिकेट करता है क्या बताता है कि मेरे पेपर के ऊपर मेरे न्यूज़पेपर के ऊपर अगर स्पाइडर है तो वो क्या बताता है कि ये गुड लक है या बैड लक है मेरे लिए अच्छा समय लाएगा अच्छा लक लाएगा या बुरा लक लाएगा तो मार्क ट्वेन ने कहा कि फाइंडिंग अ स्पाइडर इन योर न्यूज़पेपर इज नीदर गुड नॉर बैड उससे कोई गुड और बैड लक कुछ भी यू कांट इंटरप्रेट और यू कांट दिस डजंट इंडिकेट दैट द स्पाइडर वाज merely looking over now this is the pinch of humor because Mark Twain don't forget always said कि हम अपनी लाइफ को इजी बनाते हैं बेटा अगर हम थोड़ा सा जैसे कहते हैं ना हम खाने को और टेस्टी स्वाद बना देते हैं इफ विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट कि हो सकता है एक पिंच मतलब एक चुटकी सॉल्ट अगर हम खाने में कम डालें तो खाना अच्छा नहीं लगेगा और ज्यादा कर दें तो भी अच्छा नहीं लगेगा इट शुड बी अप्रोप्रिएट राइट है ना तो हमारी जो लाइफ है इफ इट हैज चैलेंजेस अगर हम उसमें जरा सा ह्यूमर डाल दें जरा सी तो वो हमें खुशी देगी हमें मुश्किलों में भी एक स्माइल देगी होता है कि नहीं होता होता है ना तो उसने यहाँ पर आपको हंसा उसने उसको एक जोक की तरह लिया उसने बोला इससे क्या अच्छा और बुरा क्या पता चलता है स्पाइडर सिर्फ क्या कर रहा था न्यूज़पेपर के ऊपर चलकर व्हाट वाज इट डूइंग
it was looking at the advertisements. Advertisement मतलब हम वो करते हैं ना, क्या बोलते हैं, इश्तिहार देना, समझते हो इश्तिहार क्या होता है? वो जैसे आप न्यूज़पेपर या मैगजीन खोलते हो, उसमें चीजों का वो एड आती है ना, कि सर्फ की एड, चॉकलेट की एड, Yes, ma'am. बटर की एड, है ना, किसी Yes, कपड़े ma'am. की एड, है ना बेटा, उसको हम एडवर्टीजमेंट, वो क्यों डालते हैं, वो क्यों डाला जाता है, एडवर्टीजमेंट क्यों डालते हैं? ताकि लोगों को पता चले कि हम कोई चीज बेचते हैं, है ना। तो हम वी आर अट्रैक्टिंग कस्टमर्स, वी आर अट्रैक्टिंग बायर्स, कि वो जो खरीदार है वो हमारे पास आए इस एड्रेस पे और हमसे ये चीजें लेके जाएं। इतना समझ में आया? अगर Yes, ma'am. वो खरीदार आए ही नहीं उन चीजों को लेने के लिए, दे डोंट बाय, गो टू दैट पर्टिकुलर शॉप टू बाय थिंग्स, तो चीजों को हवा ही नहीं लगेगी, कहते हैं ना, वो चीजें स्टैग रह जाएंगी। और जब स्टैग रह जाती है चीजें, जब हिलाई नहीं जाती हैं, तो मकड़ी क्या करती है, वहां जाला बुनना शुरू कर देती है। अगर आप चीजों को नहीं हिलाते, आपने कितनी बार ऐसे किया होगा कि आपने देखा कोई अलमारी खोली और उसके अंदर कोई चीजें रखी हुई हैं और बहुत टाइम से आपने उन चीजों को नहीं हिलाया, तो क्या होता है वहां पर, मकड़ी आ जाती है, मकड़ी मकड़ी का जाला। जाला बन जाता है, राइट। सो हम उसको फिर साफ करते हैं। सो अगर वो चीज वहां से हिलेगी नहीं, इट इज स्टैक्ड देयर फॉर couple of days और मे बी couple of months, तो वहां पर अपने आप मकड़ी जाला, तो मकड़ी क्या ढूंढ रही है, वो न्यूज़पेपर के ऊपर चल के ही देख रही है कि कौन सी ऐसी जगह है जहां मैं अपना घर बना सकती हूँ। अगर एड है, एडवर्टीजमेंट दिया है, तो लोग आएंगे, और अगर उसने एडवर्टीजमेंट नहीं दिया है तो चीजें ऐसी की ऐसी रहेंगी, ज्यादा हिलेंगी डुलेंगी नहीं, तो मैं वहां जाके मकड़ी का जाला बना लूं। मतलब उसने यहाँ पर इस बात को एक मजाक के रूप में बोला टू द रीडर। अब आप समझ में आया? Yes, ma'am. है ना? कुछ ऐसा समझ में जो नहीं आया, प्लीज यू कैन आस्क। सो पोटेंडेड इज अ नाइस गुड वर्ड, पोटेंडेड को भी अंडरलाइन कर लो। इट मीन्स व्हेन यू आर प्रेडिक्टिंग, व्हेन यू, व्हाट डज इट, आई मीन, आप अपनी तरफ से बताते हो, सोचते हो कि, जैसे एक बड़ी कॉमन एक ऐसा मिथ है ना, कि अगर चप्पल पे चप्पल आ जाती है तो कहते हैं हम कहीं जाएंगे घूमने, कहते हैं ना, चप्पल पे चप्पल आ गई तो तुम कहीं जाओगे। ऐसा तो कुछ नहीं होता है बेटा, इट इज जस्ट a superstition. So that is called superstition. समझ रहे हो बेटा? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. मैम मैं पढ़ू समृद्धि। हाँ पढ़ो बेटा। मार्क बाकी ट्वेन बच्चे चुप क्यों बर्थ रहते इन। हैं? दो चार बच्चे ही बोलते हैं क्लास में। ये महाजन के नाम से कौन सा बच्चा है? ये महाजन गणेश के नाम से? यस मैम। आपका क्या नाम है बेटा? अक्षरा। अक्षरा। अक्षरा यू सेड ना? आप भी पार्टिसिपेट किया करो बच्चा। हाँ बोलो बेटा। Read करो। November 1835 was heralded by the return of Halley Comment. comet twin who after Often, often नहीं होता बेटा, T is silent, often remark upon this curiosity come to think of himself and the comet as unaccountable freaks, unaccountable freaks cosmically linked, having come in together. He declared, declared they would go together. go out In together. So what did he go say? out together. Yes. So मैंने आपको दिखाया था स्लाइड में कल कि when he was born there was a comet. जब कॉमेट आया तो उस टाइम पे वो पैदा हुए थे. सो इट वॉज लाइक इन हिज माइंड कि जब दोबारा कॉमेट आएगा तो मैं यहां से, वो मुझे ले जाएगा, मतलब ही विल डाई, ही विल पेरिश. ओके, वो चले, संसार से चले जाएंगे. और
it was a coincidence. Now let's not take it as a superstition. It was a coincidence कि ऐसा हुआ कि exact 75 years के बाद दोबारा the comet came and he died on that particular, in that month and on that in that year. Okay, वो चले गए. तो ये उनकी एक और वो इनको क्या बुलाते थे कॉमेट्स को? अनअकाउंटेबल फ्रीक्स. व्हाट आर फ्रीक्स? फ्रीक होते ना जो कहीं भी चले जाते हैं, तो फ्रीक है, मस्ती मजाक कहीं भी, है ना? तो जिसका कोई अकाउंट नहीं है, जिसका कोई लिखा पढ़त नहीं है, अनअकाउंटेबल. जब किसी चीज की कोई अकाउंट मतलब वो उसका कोई एक आने, कोई निश्चित टाइम ना हो आने का जाने का या कुछ है, तो कभी भी आएगा कभी भी जाएगा, है ना? तो वो क्या बुलाते थे कॉमेट को? क्या बोलते थे मार्क ट्वेन? अनअकाउंटेबल फ्रीक. क्या बोलते थे बेटा? बोलो. Unaccountable feat. Yes. तो उन्होंने बोला कि when I was born, this comet came, and now that again when this comet comes, so I'll go with him. मतलब he'll take me back. And it was a coincidence that this happened. समृद्धि यहाँ से यहाँ तक पढ़ लो बेटा. In Fane's twins was proven right on the night of his death in April 1910. Halley comet once again blazed through the sky. Through the sky. Blazed का मतलब चमका. Through the sky. Through the sky. Okay. Now मैं जल्दी मैं खुद पढ़ देती हूँ. अप्रैल फूल्स डे, आपको पता है 1 अप्रैल को वी मेक अप्रैल फूल, हम लोगों को बेवकूफ बनाते हैं. So when he said this is the day upon which we are reminded of what we are on the other 364 days. How many days are there in 1 year? एक साल में कितने दिन मानते हैं हम? 364. हाँ बेटा, 365. Yes, ma'am. एक साल में हम हमेशा 365. है ना, ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, इट इज 365. सो इस कि उन 365 में से हम एक दिन लोगों का बेवकूफ बनाते हैं. बट वो कहता है कि ये एक्चुअली में हम पूरे ये जो 1 अप्रैल का डेट है ना, ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि तुम सारी पूरे साल तुम भी बेवकूफ बनते हो, दूसरे का भी बेवकूफ बनाते हो. सो वी मेक फूल ऑफ ईच अदर. And that's true. हम कितनी बार ऐसा करते हैं मतलब. तो वो ये these are some quotations. A man cannot be comfortable without his own approval. इंसान जो है अपने अप्रूवल के अलावा उसको क्यों दूसरे से अप्रूवल चाहिए भाई? उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उसको अपने को अप्रूव करना चाहिए. Why approve others? Why wait for others to approve you? अगर अप्रूव का मतलब आप सहमति देना, ठीक है ना? आपकी किसी बात से दूसरे को की सहमति पे आपकी बात क्यों निर्भर करती है? आप खुद अपने बात को सहमति दो. गिव इंपॉर्टेंस टू योरसेल्फ एंड हैव कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ. ठीक है? अ पर्सन विद अ न्यू आइडिया इज अ क्रैंक अंटिल द आइडिया सक्सीड्स. इसका मतलब किसी के पास भी अगर नया आइडिया आता है और वो शेयर करता है तो लोग उसको बेवकूफ समझते हैं, लेकिन वही लोग उसकी तारीफ करते हैं जब वो आइडिया सक्सेसफुल हो जाता है. अगर आप कोई आइडिया देते हो किसी बात का, स्कूल में किसी प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ भी, तो लोग कहते हैं अरे ये तो बेकार का आइडिया दे रही है, ये दे रहा है. लेकिन अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर वही लोग तारीफ करते हैं ना, है ना? Yes, ma'am. यस. एज इज एन इशू ऑफ माइंड ओवर मैटर. एज जो है, कहते हैं ना, एज इज जस्ट अ नंबर. अपनी मैम आई नो 10 मिनट मेरे बहुत वेस्ट हुए हैं. बेटा मैं आपको ये अगले उसमें कंप्लीट करा दूंगी एंड विल डू सम ग्रामर आल्सो, सॉरी राइटिंग स्किल, जो आप लोगों हमने कल डिस्कस किया. Okay, ma'am. ओके. Okay, ma'am.